So good afternoon, students. Yesterday we had completed exercise 1.1 geometry. We had started chapter first similarity. So yesterday we had finished the theorems and the three properties I explained you. So what is the property I revise over here? So yesterday lecture we had completed the ratio of area of triangle. तो मैंने तीन प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया था. प्रॉपर्टी नंबर 1, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the product of corresponding base and height. ये first property किया था. Number 2, if triangles having equal base, then ratio of area of two triangle is proportional to their heights. Number 2 property था. Number 3, if the triangles having equal height, then the ratio is proportional to their corresponding bases. तो तीनों प्रॉपर्टी देखो, याद रखो वापस, अगर बेस एंड हाइट अनइक्वल है तो दोनों का मल्टीप्लाई करने का. अगर बेस इक्वल है तो यू हैव टू टेक देयर हाइट. इफ द हाइट इज इक्वल देन कंसिडर देयर बेसिस. सो दैट इज हियर एक्सरसाइज 1.1. In 1.1 we had finished the 5 sums and the solve example 2 किए थे मैंने. Today everybody we will come across exercise 1.2. So now see, so this is your concept of exercise 1.2. The first property is known as basic proportionality theorem. Actually this is one of the your theorem in the exam they are asking over here. So what is the theorem? उसको नाम क्या दिया है? Basic proportionality theorem. theorem क्या है देखो, इन ट्राइंगल ABC में सेगमेंट XY, दिस इज XY, इसको बोलते हैं पैरेलल टू साइड BC. देन बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, उसका शॉर्ट फॉर्म है बाय यूजिंग BPT. देखो अभी XY पैरेलल है ना, तो उसके ऊपर कौन है? पॉइंट A. तो स्टार्ट फ्रॉम A, तो इट इज AX अपॉन XB is equal to AY upon YC. I repeat. So what is the theorem? In triangle ABC, segment XY is parallel to side BC. Therefore, by basic proportionality theorem, जो साइड पैरेलल है उसके ऊपर से पॉइंट से we have to start student. तो we have to take AX अपॉन XB is equal to AY अपॉन YC. ये हो गया फर्स्ट थियरम. अभी इसका कन्वर्स है, उसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसमें क्या था? XY इसको पैरेलल था, इसके लिए दो साइड्स प्रोपोर्शनल में थे. अभी उल्टा, अगर इन ट्रायंगल PQR में PX अपॉन XQ है एंड PY अपॉन Y, अगर साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शनल में है, देन वी कैन टेक XY इज पैरेलल टू QR. देखो उल्टा है, इधर पहला मैंने पैरेलल बोला था, देन आई विल टेक द साइड्स. अभी इधर उल्टा, फर्स्ट टेक द साइड्स देन यू कैन से द लेंथ्स आर पैरेलल. तो इसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. दोनों में डिफरेंस क्या आई एम टेलिंग यू. इसमें क्या होता है? पैरेलल इज गिवन टू यू, और इसमें क्या होता है? वी हैव टू शो दैट द सेगमेंट्स आर पैरेलल. डिफरेंट खाली इतना ही है, इसमें पैरेलल दिया रहता है, अगर पैरेलल है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर्स. अगर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर्स देन द सेगमेंट्स आर पैरेलल. सो दिस इज योर BPT थियरम, उसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. Okay, after these two theorem we have one more theorem known as angle bisector theorem. What do you mean by angle bisector theorem? Now see everybody, I have drawn the diagram over here. In triangle ABC, ray BX, this is called ray BX. Ray BX is a bisector of triangle ABC. जो बाइसेक्ट किया है उधर छोटा तो मार्किंग रहेगा, मार्किंग किया रहेगा मतलब वो है अपना एंगल बाइसेक्टर थियरम जाएगा. So by using angle bisector theorem, now remember जो बाइसेक्ट किया है एंगल, start from that angle only. तो you will take ABA upon BC is equal to AX upon XC. I repeat, मैंने क्या किया है? How you come to know? We have to apply angle bisector theorem over here. In triangle ABC वो लोग लिख के देंगे कि ये रे बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्टर वर्ड आ जाए मतलब अपने को यूज करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर थियरम.
in triangle ABC, ray BX is a bisector of angle ABC. So by using angle bisector theorem, we will take BA upon BC is equal to AX upon XC. Remember, जो bisect किया है start from that angle only. Now last property is known as intersection of three parallel lines. मतलब देखो इधर क्या दिया है, line L is parallel to line M is parallel to line N. देखो L is parallel to M, M is parallel to N. तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, and X and Y they are known as their transversals. So if the line L is parallel to M, M is parallel to N, then it is known as intersection of three parallel line. What is the theorem? We have to take the ratio AB upon BC is equal to PQ upon QR. So now with the help of these four properties, students, we are solving your exercise 1.2. I repeat all the four property. Property number 1 known as basic proportionality theorem. In that theorem what we come across, in triangle ABC में अगर XY इसको parallel है, then we have to take AX upon XB is equal to AY upon Y. जो side parallel है start from उसके ऊपर का point लेने का, तो AX upon XB is equal to AY upon YC. Okay, अभी इसका converse क्या है, if the sides are in proportional, already px upon xq है and py upon y है, then ultimately the sides are parallel to each other. जब भी आप पूछेंगे कि show that the sides are parallel, that time we have to use converse of basic proportional theorem. अगर बोलेंगे कि पैरेलल दिया है तो यूज बीपीटी थियरम, शो दैट दे आर पैरेलल, यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम. सो रिमेंबर, बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा थियरम कहाँ अप्लाई करने का वो समझता नहीं है. तो थिंग इज दैट, रिमेंबर, कभी भी पैरेलल दिया होगा तो यूज बीपीटी थियरम. द पैरेलल इज आस्किंग टू शो दैट एंड यूज कन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem. Here they will use the word bisector. तो immediately मालूम पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर वर्ड आ गया तो यूज एंगल बाइसेक्टर थियरम. और एक हिंट है, वहां लोग ऐसा छोटा मार्किंग क्या रहता है, जो मार्किंग किया है मतलब वो अपना जाएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम के ऊपर. और जो बाइसेक्ट किया है स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स सी. और इधर क्या होता है, तीन लाइंस पैरेलल रहते हैं और दो होते हैं ट्रांसवर्सल. देन यू विल कम टू नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. तो थ्योरम क्या है, बी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. इज इट क्लियर टू यू? सो ये चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर वी हैव टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट. So shall we start now? So देखो, जैसे ही तुम लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग 1.2 ये चारों प्रॉपर्टीज एक नोटबुक पे लिख ले लो, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर एक्सरसाइज 1.2. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. इन 1.2 सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर. उन्होंने क्या बोला है उधर, ओके. So 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, सी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, गिवन बिलो, सम्स आर गिवन देयर, गिवन बिलो पेज नंबर 13 आर द सम ट्रायंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स. आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज ए बाइसेक्टर. मतलब बाइसेक्टर मतलब अपने को फाइंड करने के कि रे पी एम बाइसेक्टर है कि नहीं, कौन सा एंगल का, क्यू पी आर का. देखो उन्होंने फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर रहा है डायग्राम इधर. दिस इज माई ट्रायंगल ओवर, दिस इज पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इधर क्या दिया है, एम बोला है. और क्या बोला है, रे पी एम, मतलब रे पी एम मतलब अल्टीमेटली इधर बाइसेक्टर दिया हुआ है, अपने को फाइंड आउट करने की, आइडेंटिफाई करने को बोला है. दिस इज ईयर 7, दिस इज ईयर 3, 3.5, 1.5, 3.5 एंड व्हाट 1.5. So what is our question? पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है, given below are the some triangles, okay, and length of the line segments. Find, identify in which figure, कौन से फिगर में
रे पीएम बाइसेक्टर है। हाउ यू कम टू नो को रे पीएम बाइसेक्टर है? नाउ सी द सॉल्यूशन, कैसा करना पड़ेगा सॉल्यूशन देखो। सी आई एम राइटिंग ओवर हियर इन ट्रायंगल PQR लिखने का हिस्सा, इन ट्रायंगल PQR what they are given to you students? PQ is equal to 7, PR is equal to 3, then QM is equal to 3.5 and RM is equal to 1.5. Okay, so now this is your first part, this they had everything given to you. Okay, ये दिया हुआ है, तो अभी इधर लिखना पड़ेगा कंसीडर, अभी अज्यूम करेंगे, देखो हम लोग बाइसेक्ट कौन P है ना, तो PQ अपॉन PR अज्यूम करें। कंसीडर व्हाट स्टूडेंट, वी कैन टेक PQ अपॉन why I start the P only because I want रे PM, इसलिए स्टार्ट P से लिया, तो मैंने PQ अपॉन PR लिया। तो PQ की वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी है 3, सो दिस इज नॉट फर्दर डिविजिबल, यू कैन से फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो। नाउ रिमेंबर, अगर तुम लोगों ने PQ लिया है अपॉन PR लिया है, देन यू टेक QM अपॉन MR, ऑल्सो व्हाट QM upon what MR. What is QM they are given to you? 3.5. This is what 1.5. So now you student remove the decimal point. What is over here? Therefore this should be QM upon MR is equal to 35 into 10 upon 15 into y 10, बिकॉज डेसिमल के आगे एक नंबर है तो इसका 0 ऊपर जाएगा, इसका 0 नीचे आएगा। सो आई एम कैंसलिंग दिस 10 and 10 over here, 5 3s are 5 7s are, तो आई एम गेटिंग QM अपॉन MR इज इक्वल टू व्हाट 7/3, दिस इज योर नंबर 2। नाउ देखो फर्स्ट में कितना था 7/3, इधर भी कितना है 7/3, सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, so from 1 and 2, what I am getting over here, I am getting PQ upon PR is equal to QM upon MR is equal to what 7, दोनों इक्वल आ गया 7/3, therefore ray PM is a bisector of angle QPR. QPR is verified, दोनों इक्वल आ गया तो बाइसेक्टर है, अगर नहीं आया सो इट इज नॉट बाइसेक्टर। आई रिपीट, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल PQR में इसकी वैल्यू दिया था 7, इसका दिया था 3, इसका 3.5, इसका 1.5, सो मैंने कंसीडर किया रेशियो, आई कंसीडर द रे सेगमेंट PQ अपॉन PR 7/3। अगर मैंने PQ अपॉन PR लिया देन आई हैव टू टेक दिस अपॉन दिस, अगर बाय मिस्टेकली आप लोगों ने दिस अपॉन दिस लिया तो अपने को A अपॉन A लेना पड़ेगा, रेशियो अपने पर डिपेंड है, बट रिमेंबर स्टार्ट फ्रॉम P ओनली, तो PQ अपॉन PR लिया, आई एम गेटिंग दिस, देन आई एम टेकिंग QM अपॉन MR 3.5 अपॉन 1.5, डेसिमल को रिमूव किया, इंटू 10 10 कट हो गया, 15 5 3s 5 7s, दोनों इक्वल आया 1 and 2, सो रेशियोज आर इक्वल, रेशियोज इक्वल है, दैट इज व्हाई द गिवन रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल इज वेरीफाइड। लाइक दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। गॉट इट एवरीबॉडी? सो समझा कैसे सॉल्व करने का है फर्स्ट क्वेश्चन। अभी उसी में से उन्होंने 2 और दिए हैं, अभी वो हम लोग करेंगे उसका सेकेंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन 1 का नंबर 2 डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हो वापस इधर। उन्होंने दूसरा क्या देखो दिया है, डायग्राम दे हैड गिवन टू यू, सो ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। दिस इज व्हाट PQR, PQR and this should be your M, 7 6 8 10. Okay, so now again same method we have to go, in triangle PQR सेम जाना पड़ेगा अपने को वापस, तो कैसे करेंगे देखो अभी हम लोग इसको। come on everybody tell me, so how to start, see
in triangle PQR, what that given to you? Come on, tell me. PR कितना दिया है? 7. Then what? PQ is what? 10. Then what? RM is 6 and MQ is equal to 8. एक बार वापस चेक कर ले लो वैल्यूज क्या क्या दिया उन्होंने. ओके, राइट है वैल्यूज. ओके, सो नाउ सी, वापस करेंगे हम लोग कंसीडर. ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम P. तो PR अपॉन PQ, व्हाट इज दैट? PR upon PQ. This is what? 7/10. No divisibility first. Okay. Also, come on, अगर मैंने PR लिया तो I have to take RM upon MQ. What is that? RM upon what? MQ. What is R? 6 upon 8. So 2 3s are 2 4s are 2 3s are 2 4s are 3/4. ये कितना आया? 7/10. ये कितना आया? 3/4. तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम 1 and 2? आई एम गेटिंग PR upon PQ is equal to RM is not equal to RM upon MQ. दोनों इक्वल नहीं है ना. This is 7/10, this 3/4. Okay, so what is the final answer? Therefore, ray PM is not angle bisector of angle QPR. वो बाइसेक्टर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए इट इज नॉट बाइसेक्टर. गेटिंग? दोनों इक्वल आ जाएगा तो इट इज ए बाइसेक्टर, अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा so it is not bisector. It's very simple questions, और like this question they will ask for 2 marks in the exams. Okay, अभी वैसे ही उन्होंने और एक थर्ड सम देखो दिया है from that question. The third question over here, देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का डायग्राम दिया है. We will draw the diagram from there. Okay, so like that I given to you. This is PQR. This is P. This is Q. This is R. Okay, and what is over here? Ray PM. This is what here? Ray PM. Fine. So this is 10, 9. This is 10. This is 9 over here. This is 3.6 and 4. This is what we have? 3.6. This we have 4. तो सेम मेथड से जाना पड़ेगा, खाली उन्होंने वैल्यूज चेंज किए हुए हैं, नथिंग एल्स. बट यू गॉट द मेथड. दोनों साइड्स इक्वल आ गया, मतलब बाइसेक्टर है. नहीं आया तो इट इज नॉट बाइसेक्टर. तो क्या करेंगे हम लोग? कम ऑन, इन ट्रायंगल वापस PQR क्या क्या दिया है वो लिख लेना पड़ेगा. पहला PR is 10, PQ is 9, then RM is equal to 4, then QM is equal to 3.6. Get it? इतना मालूम पड़ा? अच्छा, तो अभी इसके बाद देखो, कंसिडर so PR upon PQ. What is that, student? PR upon PQ. What is PR? 10 upon 9 first. Okay, now PR लिया तो RM जाएगा, RM upon what? MQ. What is RM? 4. This is what? 3.6. तो डेसिमल को हटा देंगे हम लोग यहाँ से. This is 4 into 10 upon 36. Got it? So come on everybody, 4 1s are 4 9s are. तो कितना मिला मुझे? 10 upon 9. देखो मिल गया सेम. This is your 10 upon 9. ये भी कितना आया? 10 upon 9. Both are right. So what was the result? I'm getting over here from 1 and 2. What is the conclusion over here? I'm getting PR upon PQ is equal to RM upon MQ is equal to 10 upon 9. दोनों इक्वल आ गया, मतलब क्या हो गया? Therefore, ray PM is a bisector of angle QPR is
वेरीफाइड। गेट इट एवरीबॉडी, ये बाइसेक्टर है अपना, प्रूफ हो गया। समझा? यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1। तो तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रे पीएम क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, पहचानो। कैसे फाइंड करना पड़ेगा? दोनों साइड्स इक्वल आ गया तो इट वाज द बाइसेक्टर, अगर नहीं आया तो इट वाज नॉट द बाइसेक्टर। गेट इट? ये तीनों क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दे कमिंग फॉर 2 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में। ओके, सो नाउ सी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या देखो दिया है, आई एम सेइंग ओ हियर, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, देखो सी हियर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन 1 हो गया, अभी 2 करेंगे। Diagram is already given to you, so we need to draw the diagram for every question. Diagram is very very important. P Q R M N. This is P, this is Q, this is R, this is M, this should be N. Okay, हाँ, क्या क्या दिया है? PM is 15, PQ is 25. PM is 15, PQ is 25. So this is what they had given me, 25. PR is 20. ये पूरा दिया है 20 and NR is 8. NR कितना दिया अपने को? 8 दिया हुआ है। और बोला है state whether NM is parallel to RQ। मतलब दिस इज पैर में क्या बोला था? whenever the question is coming state whether it is parallel, मतलब अपने को यूज करना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम। तो तुझे क्या करने का है? देखो सॉल्यूशन देखो, सी इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, फर्स्ट पॉइंट एवरीबडी यू टेल मी, पी क्यू is what? PM plus MQ. You know why? Between is P dash M dash Q. Okay, so PQ कितना दिया उन्होंने अपने को? 25 दिया है। PM how much? 15. MQ is not given to you, so you will get 25 minus 15 is equal to MQ. So I am getting student MQ is equal to 10. मिला MQ का वैल्यू 10, so this I am getting 10. I just write over here 10. वैसे ही इधर का पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट। ओके, also जैसे PQ किया वैसे PR करेंगे। also come on everybody, PR is equal to what? I am getting PN plus NR. What is the reason over here? I am getting the reason P dash N dash R. So now PR कितना है? 20. PN is not given to you student. NR is given to you 8. So what is the final reason? So 20 minus 8 is equal to PN. So I am getting PN is equal to 12. If first of all you find out the values which are not given to you, ये निकाल के लेने का हो गया 1 2। अभी करेंगे थर्ड पॉइंट। ओके, अपने को प्रूफ करने का है कि सेगमेंट एनएम इसको पैरेलल है कि नहीं। इसके लिए हम लोग करेंगे, इधर देखो, कंसीडर टेक दिस अपॉन दिस, हाँ, रेशियोज इन ट्रायंगल पी क्यू आर। व्हाट इज दैट? PN upon NR. Okay, what is PN? 12 upon 8. 4 2s are 4 3s are, what is that? 3/2. ये मिला इधर का। ओके, 4। also अगर दिस अपॉन दिस किया तो अभी दिस अपॉन दिस करेंगे। आई एम गेटिंग व्हाट? also what? PM upon what? MQ. This is 15/10. So 5 3s are 5 2s are। देखो ये भी 3/2 मिला, ये भी 3/2 मिला, दोनों सेम आया। therefore fifth, therefore I am getting PN upon NR is equal to PM upon MQ is equal to 3/2. From where? From 3 and 4.
दोनों इक्वल आ गया, देयरफॉर सेगमेंट NM is parallel to साइड RQ। रीजन क्या आएगा, रीजन में क्या जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ आई कम टू नो कि ये इसको पैरेलल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल PQR में मैंने किया पहला PQ, तो PQ इज व्हाट, PM प्लस MQ। तो PQ 25 दिया था, A 15 दिया था, MQ निकाला, माइनस किया, 25 माइनस 15, आई एम गेटिंग 10 ओवर हियर, मिला 10। वैसे ही इधर PR इज PN प्लस NR, PN प्लस NR 20 माइनस 8 12 लिया। तो अभी वापस कंसीडर एन ट्रायंगल PQR, वी टेक PN अपॉन NR, सो 12 बाई 3 बाई 2 एंड PM अपॉन MQ 15 बाई 10 3 बाई 2, दोनों इक्वल आ गया। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल 3 बाई 2। अगर दोनों इक्वल है, देयरफॉर सेगमेंट NM is parallel side RQ by using of converse of basic proportionality। तुम लोग फुल फॉर्म लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम बोलते हैं उसको। समझा दोनों क्वेश्चन, हाउ आई शो। इन द फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सिखाया हाउ टू शो द रे इज बाइसेक्टर। साइड्स रेशियो में आ गया तो रे बाइसेक्टर हो गया, साइड्स रेशियो में मिल गया तो साइड आल्सो पैरेलल टू ईच अदर्स। ओके एवरीबॉडी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कम से कम कंप्लीट किए हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उधर का, उधर से ही ऑन टर्न द पेज, 14 पेज नंबर, पेज नंबर 14 के ऊपर थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है। So now I am showing the third question from there. So third question they are asking, okay, so what is third question, diagram already given to you, क्या दिया है डायग्राम, हाँ, this is P and M, P and M Q। ओके, सो दिस इज व्हाट, उन्होंने दो छोटे राउंड किए हैं, मतलब राउंड किए मतलब इधर आएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम जाएगा 7 5 2.5, दिस इज 7, दिस इज 5 2.5। ओके, और क्या बोला है इधर, फाइंड लेंथ QP। तो QP की वैल्यू क्या रहेगी, इतना निकालने को बोला है, फाइंड लेंथ QP। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन। नाउ देखो सॉल्यूशन, कम ऑन एवरीबॉडी, हाउ टू स्टार्ट। इन ट्रायंगल P and M, what is that, ray NQ is bisector of angle P and M, right? Therefore this is they had given, पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करने के बोला था, अभी दिया हुआ है, गिवन में आ जाएगा। सो व्हाट, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल, कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया हुआ है, एन, तो स्टार्ट फ्रॉम एन, NP अपॉन NM, व्हाट इज दैट, NP अपॉन NM is equal to PQ अपॉन MQ। रिपीट द क्वेश्चन, देखो मैंने NP अपॉन NM लिया तो दिस अपॉन दिस लेना पड़ेगा, अगर मैंने दिस अपॉन दिस लिया तो मुझे ये अपॉन ए लेना पड़ेगा। प्लीज बी टेक प्रिकॉशंस देयर। अगर तुम लोगों ने ये लिया है तो ए आना चाहिए, दिस अपॉन दिस देन दिस अपॉन दिस, अगर बाय मिस्टेकली ये अपॉन ए किया तो ए अपॉन ए आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज योर 7 अपॉन 5, दिस इज योर 7 अपॉन 5 is equal to, this is your PQ upon what, 2.5. Do the cross multiplication, I'm getting here 7 into 2.5 equal to 5 into what, PQ. So I'm getting
7 into 2.5 upon 5 is equal to PQ. So remove the decimal. 7 into 25 upon 5 into 10 is equal to PQ. So 5 ones are 5 5s are. So I'm getting PQ is equal to 35 by 10. So you are getting PQ is equal to 3.5. What is PQ? You are getting 3.5. Okay. So I repeat. उन्होंने क्या बोला है? Find the length QP या PQ, whatever you may be. In triangle P and M, ray NQ is what? Bisector of angle P and M. दिया हुआ है. So by angle bisector theorem, NP upon NM is equal to PQ upon QM. So this is 7 by 5 and PQ by 2.5. Simplify kiya, I am getting the value of PQ is 3.5. Okay. So now please student, we can take here 5 minutes break over here. तब तक तुम लोग देखो how to copy करो ये 3 questions. Just will take 5 minutes break over here. Okay. So we had finished the first 3 questions. The question number 1 we had done. How will show the given ray is a bisector. दोनों साइड्स इक्वल आ गए तो रे बाइसेक्टर हो गया. सेकंड में मैंने प्रूफ किया था यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. थर्ड में मैंने अप्लाई किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अभी फोर्थ सम जो दिया है, सो नाउ व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चंस दे हैड गिवन टू यू स्टूडेंट. आई एम शोइंग यू. देखो उन्होंने डायग्राम बना के दिया है. उधर ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू. This is A, this is B, this is C, this is P and this should be your Q. Okay. Then this is 60 degree and 60 degree. दोनों कितने दिए उन्होंने अपने को? They had given to you this is 60 degree और AB कितना बोला है? 60 degree बोला है. और क्या बोला है? Show that, to prove. What is to prove here? Again they are asking to show that AP upon PB, AP upon PB, AP upon PB is equal to what? AQ upon QC. ये चाहिए अपने को. Okay. Now see the proof. Okay. Here you write statement. इधर आएगा reason. Okay. Now first, in triangle ABC, angle a major angle APQ is equal to major angle ABC is equal to 60 degree. This is given, right? So if the measures are equal, you know measures equal, so angles congruent. Therefore angle APQ is congruent to angle ABC. देखो अभी APQ is congruent to ABC. So you know everybody, these are the which angles? Corresponding angles. So what is that? Therefore क्या मिला? So what is over here? So इधर लिखेंगे हम लोग corresponding angle test for parallel lines. Therefore I am getting here segment PQ number 2. Segment PQ is parallel to side BC. Q corresponding angle test. Which test? Corresponding angle test. Okay. So now everybody PQ इसको parallel है तो third point क्या आएगा? So what? In triangle ABC, PQ is parallel to BC from 2. अगर PQ BC को parallel है तो we will get student what? AP upon PB is equal to AQ upon QC. What is the theorem? Basic proportionality theorem. Done over here. Very simple question. देखो I repeat. मुझे क्या प्रूफ करने का है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो स्टेटमेंट रीजन, तो इन ट्रायंगल ABC में
मैंने क्या किया, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी, ईच एंगल इज 60 डिग्री. सो नाउ सी, अगर मेजर्स आर इक्वल अल्टीमेटली एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी है, सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी बाय विच टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. ओके, तो अगर पी क्यू इसको पैरेलल है तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम we will get AP upon PB is equal to AQ upon QC is verified. Is it clear to you? Question number 4 is very simple question. अभी now see question number 5. Question number 5 में क्या दिया है? Okay, now see everybody. Question number 5. We will draw the diagram over here. क्या दिया है इधर, ए बी सी डी पी क्यू. दिस इज ए बी सी डी. देन व्हाट इज ओवर हियर, पी क्यू. दिस इज हियर पी, दिस इज हियर क्यू. देन व्हाट values are given to you. This is 15, AP is 15, then PD is 12, QC is 14, और बोला है फाइंड आउट बी क्यू. तो बी क्यू कितना रहेगा? ओके, नाउ सी, अपने को क्यू बी क्यू चाहिए. ओके, नाउ सी सॉल्यूशन. क्या देखो दिया है उन्होंने, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे वापस, देन यू विल कम टू नो व्हाट दे हैव गिवन टू यू. इन अ ट्रेपेजियम ABCD, इन अ ट्रेपेजियम, इन अ ट्रेपेजियम ABCD. ओके, व्हाट हैव गिवन टू यू, उन्होंने क्या क्या दिया है, साइड AB इज पैरेलल टू side PQ is parallel to side DC. This is they had given to you. Okay? अच्छा, और क्या क्या दिया, वैल्यूज दिए हुए हैं. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. नंबर 2 क्या क्या दिया है, AP is 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14. अच्छा, सो नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ 3 पैरेलल लाइंस कैसे हो जाएगा, कम ऑन, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. इधर क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स. इट्स अ पैरेलल लाइन. सो वैल्यूज बताते जाओ. AP कितना है अपने पास, 15, देन अपॉन 12, BQ वी नीड टू कैलकुलेट, अपॉन QC कितना है, 14. तो सिंप्लीफाई करते जाओ, 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ. सो 3 4 जा 3 5 जा, 2 2 जा 2 7 जा, तो 7 5 जा 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू BQ. सो BQ इज इक्वल टू 17.5. कुछ यूनिट दिया उन्होंने, नॉट गिवन, तो 17.5 ओनली. तो व्हाट वाज द आंसर, BQ इज इक्वल टू 17.5. अंडरस्टूड. रिपीट द सॉल्यूशन. उधर क्या प्रूफ करने को बोला था उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ BQ. मैंने क्या किया, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC. A15 दिया है, A12 दिया है, निकालने को बोला है, दिस इज गिवन टू यू. सो व्हाट, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, इंटरसेक्शन ऑफ 3 पैरेलल लाइंस. सो दिस इज 15 by 12 इज इक्वल टू BQ by 14. सब लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ. तो 7 2 7 जा. सो देन व्हाट, इधर मैंने क्या किया, 3 4 जा 3 5 जा,
then 2 2s are 2 7 7 5s are 35 upon 2 is 17.5. तो BQ का वैल्यू कितना आया 17.5 मिला. ओके, so now see here after that fifth question. Now we'll do the sixth question over here. देखो 6 क्या दिया है उन्होंने, सिक्स में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लाइन QP बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिक्स डायग्राम दिया हुआ है, जो भी दिया है डायग्राम दैट वी नीड टू ड्रॉ देयर. P and M and Q. This is P, this is N, this is M, this is Q. Okay, then this is what, 40 25 40, this is 40, this is 25, this is 14 14, and this QP we to find out. उन्होंने क्या बोला, find the value of QP. तो सिंपल है, QP की वैल्यू कितनी रहेगी, उन्होंने वापस इधर दिया है, बाइसेक्टर का सिंबल दिया है, मतलब बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थियरम. हाउ टू स्टार्ट, कम ऑन एवरीबॉडी. इन ट्रायंगल PNM what ray NQ is a bisector of angle PNM. This is they had given. तो what, by angle bisector theorem. फुल फॉर्म लिखो, ABT नहीं लिखने का. N बाइसेक्टे तो क्या करेंगे, NM अपॉन NP. What is that? NM अपॉन NP is equal to MQ अपॉन QP. तो NM कितना है अपने पास, 25 अपॉन 40 is equal to 14 upon QP. So now we can do cross multiplication. This is 25 into QP is equal to 40 into 14. So I'm getting QP is equal to 40 into 14 upon 25. So this is 5 5s are 5 8s are. So you will get QP is equal to 8 4s are 32, 8 with the 8 9 10 11 1 1 2 upon 5, 5 1s are 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 4s are 20. So you will get QP is equal to 22.4. What is the value of QP is equal to, you are getting 22.4. Okay, so very simple question था. Now 7 सम करेंगे हम लोग अभी, और एक देखो 7th sum, what are given to you? क्या दिया है, A B C D E F. This is A B C D E F. Okay, A B C D E F दिया हुआ है. 12x 8 4, 12x, this is your 8 and 4, 8 and 4. Find x. What is the over here? Find x. और दिया है lines are parallel to you. ठीक है, और क्या बोला, lines are parallel to you. Find x and length A. And what? A. ठीक है. So now the last question we'll do over here. देखो अभी इधर देखो. So now see, in figure they are given, otherwise write down, by using intersection of three parallel lines. Come on everybody, so it should be what? AC upon CE.
AC upon CE is equal to BD upon DF. So this is what 12 upon x is equal to 8 by 4. So 4 ones are 4 twos are. This is 12 upon x is equal to 2 by 1. So we can do cross multiplication. X is equal to 12 upon 2. You will get x का वैल्यू कितना मिला 6. बट मुझे ए का वैल्यू चाहिए. So length AE is equal to what? Length AC plus length C betweenness A dash C dash E. So AC कितना है 12 plus 6 we will get 18. ठीक है. So remaining question we'll see in the tomorrow's lecture student. So आज हम लोगों ने 1.2 भी कंप्लीट किया हुआ है, आधा हो गया है, आधा पार्ट हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यूशन करेंगे. So just copy down all the 7 questions and as you get this lecture you can send both the lectures exercise 1.1 also exercise 1.2 also. दोनों होमवर्क मुझे कल तक सबके आने चाहिए. So now do it fast student. I am complete stop over here.